مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. عزیزان گرامی، مسلمانوں کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. ایمان ہے تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں اسی کے لیے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا و آخرت کا نقصان اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو بچانے کے لیے اگر ہماری جائیدادیں ختم ہو جائیں تو اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اگر ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ہماری جان کو گنوانا پڑے تو اس کو بھی گنوانا پڑے گا، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا و آخرت کا وبال، نقصان سب اسی کے واسطے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. اور اسلام سے بڑھ کر سچا اچھا مذہب کوئی نہیں. مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور اپنی جان سے، اپنی مال سے، سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ابھی ہمارے سامنے جو حالات آ رہے ہیں اور جو حکومت مسلمانوں کی ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں رچ رہی ہیں، اس کے اندر بہت سارے آگے چل کے نسلوں کو نقصان ہونے والا ہے اور ایمان کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے. اس لیے آج بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، متوجہ متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. آزادی سے لے کر آج تک مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہوگا، لیکن اب حکومت کی طرف سے جو نئی تعلیم اور نئی ایجوکیشن اور جو نیا نصاب حکومت نے بنایا ہے، اس سے مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ ہے. یعنی مسلمانوں کے بچوں کو جو تعلیم دی جانے والی ہے اسکولوں کے اندر، اس سے مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کا خطرہ ہے. وہ کیسے؟ کہ اب تک نئی تعلیمی پالیسی کئی مرتبہ بنائی گئی. نیو ایجوکیشن تعلیمی پالیسی کہتے ہیں اس کو. کئی مرتبہ بنائی گئی، نصاب مرتب کیا گیا، لیکن ہر مرتبہ نصاب کے مرتب کرتے وقت جمہوریت کو سامنے رکھا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر ہر قوم کے، ہر تہذیب کے لوگ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. ان کی نشانیاں، ان کے آباء و اجداد یہاں رہے ہوئے ہیں، ہزاروں سالوں سے یہاں سے آباد ہیں اور یہاں کے شہری ہیں اور ہر مذہب کے رہنے والے ہیں. تو ہر مذہب کا لحاظ کرتے ہوئے، جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملک کی ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم بنائی گئی تھی، نصاب مرتب کیا گیا تھا. لیکن 2020 کے اندر جو نصاب مرتب ہوا ہے اور اسکولوں میں اس کو پڑھایا جانے والا ہے، تو یہ حکومت نے 2015 سے لے کر 2020 تک اس پر محنت کی. یعنی 5 سال جب سے ان کی حکومت آئی، سرکار بنی، اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے خوب اس پر محنت کی
5 साल तक निसाब मुरतब किया। अब वो जब निसाब मुरतब होकर सामने आया तो उससे पता चला कि वो नाम तो जमहूरियत दे रहे हैं, लेकिन उसके निसाब से मालूम हो रहा है कि वो उसको मज़हब का रंग दिया जा रहा है, उसको अपने मज़हब का रंग दिया जा रहा है। जो हुकूमत अपने मज़हब को फॉलो करती है उस मज़हब को रंग दिया गया है निसाब के अंदर, और वो निसाब हर एक को पढ़ना ज़रूरी है, हर मज़हब के बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, जिससे उनका जहन ख़राब होगा। जब जहन मुतासिर होगा तो वो ख़ुद ब खुद ईमान से बेज़ार हो जाएंगे। और निसाब को ऐसा मुरतब किया गया है कि हिंदुस्तान यानी मुग़लिया सल्तनत से पहले जो उनको किताबें पढ़ाई जाती थी, उनके मजहबी निसाब पढ़ाए जाते थे, तो वो मज़हब को लौटा कर लाए हैं। उसके अंदर उनकी पुरानी किताबों से निसाब को मुरतब किया है। बस एक जहन उसके अंदर बनाया गया है कि जो तलबा उसके अंदर पढ़ेंगे और सिखाया जाएगा, उससे उनका जहन मुतासिर होगा, और जब जहन मुतासिर होगा तो वो ईमान से आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगेंगे और बिलाखिर वो मुर्तद होने के करीब हो जाएंगे। ये मुर्तद कहते हैं अपने ईमान को छोड़कर कुफ्र और शिर्क के रास्ते को इख्तियार करना। ये इर्तिदाद का रास्ता बहुत संगीन तरीक़े से मुसलमानों की तरफ आ रहा है। इसलिए बेदार होने की ज़रूरत है कि अब तक इतना नुकसान हमको नहीं हुआ होगा, लेकिन अब ये तालीमी पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है मुसलमान नस्लों को, मुसलमान बच्चों को। इसलिए बहुत सोचने की ज़रूरत है। हमारे अकाबिर उलमाए कराम भी बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंगें ले रहे हैं और इसके बारे में मशवरे हो रहे हैं, और मुसलमानों की तालीम और उनके ईमान की हिफाजत के बारे में फ़िक्र हो रही है। लेकिन उस वक़्त तक, जब तक हमारे स्कूल बनेंगे, उस वक़्त तक हमें क्या करना है? उस वक़्त तक हमें अपने हर महल्ले में, हर गली के अंदर मकातिब को कायम करना है। मकातिब के अंदर खूब ईमान की बातें बताई जाएंगी। लिहाजा इसको मुसलमानों के जहन में रहना चाहिए कि हमारा ईमान बचाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इसके वास्ते हमें अपना माल कुर्बान करना पड़े, अपनी जान कुर्बान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो हमको इस जो वबा आ रही है, जो फितना पनपने वाला है, जो इर्तिदाद की हवा चलने वाली है, उससे अपने आप को, अपने औलाद को बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी से अपने औलाद की दीनी तालीम की फ़िक्र करें, अपने औलाद के अकायद की फ़िक्र करें। जब हमारे बच्चों के जहनों में अकायद और तौहीद और ईमान के बारे में बातें बसाई जाएंगी, तो वो जहाँ भी पढ़ेंगे तो उनको कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं होगा। वो अपनी तालीम से तरक्की करेंगे और अपने ईमान को भी बचाएंगे। लिहाजा मुसलमानों से अपील है, गुजारिश है कि अपने बच्चों की मुस्तकबिल को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए उनको दीनी मदरसों से, दीनी मकातिब से जोड़ने की फ़िक्र करें और जगह जगह पर मकातिब कायम करने की फ़िक्र करें। और उलमाए कराम भी इस सिलसिले में खूब तवज्जो से काम लेने की कोशिश करें। अब मैदान में आने की और मेहनत करने की ज़रूरत है। हम हुकूमत को ललकार कर बेजार आ चुके हैं। वो जब कोई सा भी बिल निकालती है तो उसको वापस लेने के लिए पीछे नहीं हटती। हम कई एहतजाजात कर देखे, पर्दा नशीन औरतों को बाहर सड़कों पर निकाल कर देखे, उसके बावजूद भी एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते हैं। आप भी वैसा ही किया जाए तो फिर हमारे बच्चों के ईमान का ख़तरा है। इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि जगह जगह पर मुसलमानों के ईमान के लिए स्कूल बनाए जाएं और मकातिब को कायम किया जाए, मदरसों से जोड़ा जाए और जल्द से जुलूस करके ईमान के ऊपर खूब ज़ोर दिया जाए। तहरीरी एतबार से, तकरीरी एतबार से, हर एतबार से ईमान को बचाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आगाह रहने की ज़रूरत है। अभी कई इर्तिदाद की फितने अभी मुसलमानों को बर्बाद किए जा रहे हैं। एक लव जिहाद की शक्ल में कई मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ भागकर और उनके साथ इश्क करके अपने ईमान का सौदा कर रही हैं, और कई
हिंदू स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर मिलजुल कर रहने की वजह से घरें बर्बाद हो रही हैं और बेपर्दगी आम हो रही है, फहाशी आम हो रही है, बेपर्दगी आम हो रही है और उनका जहन इतना मुतासिर हो रहा है इस माहौल की वजह से, वो ये समझ रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे जिधर चाहे जा सकते हैं। न ईमान की अहमियत है, न इस्लाम की अहमियत है, न इस्लाम का पास व लिहाज है, न वालिदैन का पास व लिहाज है, न रिश्तेदारों का पास व लिहाज है। बस अपनी ज़िंदगी जिस तरह चाहे जानवरों की तरह गुजारने की फ़िक्र हो रही है। ये इर्तिदाद की हवाएं अभी हमारे लिए कम नहीं थी। एक नई हुकूमत ने हमारे लिए बड़ी ख़तरे की चीज़ सामने ला कर रख दी है। इसलिए बेदार रहने की ज़रूरत है। अपने औलाद की, दीन की, ईमान की हिफाजत करने की बहुत ज़रूरत है और ख़ुद भी बचते रहना और उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इस फितने से और हुकूमत की गलत नीयत से हमारी और पूरे उम्मत मुस्लिमा की और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम तमाम को इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।